Hello student, welcome to Chetji Bharati School in class 11th Commerce. I am DK Singh. I will be teaching you accountancy. Question number 3, common size balance sheet. Common size balance sheet as a 31st March 2016 या 17, बट यहाँ गिवन है कंपनी ए एंड कंपनी बी एज ए 31st March. क्लियर? that is common size of company A Limited and B Limited. क्लियर? इस क्वेश्चन में ईयर 31st March 2018 गिवन है. 31st March 2018. क्लियर? 31st March 2018 में दो कंपनियों को हम करना है कॉमर्स पर्सन निकालने. नंबर कंपनी नंबर ए, कंपनी नंबर बी. बस समझ आ गई? यानी कंपनी ए और कंपनी बी दोनों को हम कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे. एक और डेट 31st March 2018. कॉलम पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट कंपनी ए, अमाउंट ए लिमिटेड, अमाउंट बी लिमिटेड. परसेंटेज ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, परसेंटेज ऑफ बी लिमिटेड कंपनी. क्लियर? ईयर की जगह कंपनी का कंपैरेटिव ए एंड बी कंपनी. इक्विटी एंड लायबिलिटी. इक्विटी एंड लायबिलिटी. इक्विटी एंड लायबिलिटीज. हेडिंग नंबर ए, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर फंड. क्लियर? ए हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स ए एंड बी. शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड surplus. Clear? Second heading non-current liabilities, LIABILITIES, non-current liabilities. Third heading current liabilities, current liability, LIABILITIES, current liabilities. And total. And total. Second Roman, second assets. Number 1 non-current assets, non-current assets. Number 2 current assets. Number 2 current assets and total. Clear? Total value, share capital 4 lakh, share capital 4 lakh and 5,40,000. 5,40,000
30,000 clear. Reserve surplus 2,60,000. Non-cash liabilities 3 lakh and 2,50,000 and 2,50,000. Current liabilities 1,50,000. Total 10 lakh and 12 lakh. Non-current assets 4 lakh. Current assets 6 lakh. Total 10 lakh. B company non-current assets 7 lakh and 5 lakh. Total 12 lakh. Clear? First calculate percentage of A company limited. Working note. Clear? Working note A. Number 1, 4 lakh into 100 upon total of liability side. Total liability side and total balance sheet. Total balance sheet 10 lakh. Clear? Total balance sheet 10 lakh. Number 2, 2 lakh working 2 lakh into 100 upon 10 lakh. कॉमन बेस चैप्टर में कॉमन बैलेंस शीट यानी ए की वैल्यू कॉमन वैल्यू को हम बार बार डिवाइड करेंगे ए की वैल्यू से. कौन सी वैल्यू कॉमन वैल्यू यहाँ पर टोटल बैलेंस शीट 10 लाख. हर बार सारी वैल्यू परसेंट किससे कैलकुलेट करेंगे 10 लाख से, क्योंकि टोटल बैलेंस शीट में कितने 10 लाख है. 10 लाख पर ही हम हर चीज़ का परसेंटेज निकालेंगे कि शेयर कैपिटल कितने परसेंट कैलकुलेट करना है, रजिस्टर पर कितने परसेंट करना है. क्लियर? नॉन लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज. क्लियर? 10 लाख. 3 नॉन करेंट लायबिलिटीज 3 लाख into 100 upon 10 lakh. Base value 10 lakh. Current liabilities 1 lakh into 100 upon 10 lakh. Clear? Calculate. 1 2. Clear? 1 2 3 into 5 to 5. Clear? And 40%. Clear? 40%. Clear? 1 2 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Clear? Calculate 20%. Percentage 20%. And amount into 100 upon base value. Base value and total of balance sheet. Next. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 30%. Non-current liabilities 30%. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Any 10%. Clear? 10%. Total 100%. Total 100%. अगर 100% नहीं आता तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका रॉन्ग है. 40 60 90 and 100%. Clear? Working out clear? Amount into 100 upon total of balance sheet. Amount into 100 upon total of balance sheet. Amount into 100 upon total of balance sheet. Clear? Working asset side. Working asset side 4 lakh 4 lakh into 100 upon total 10 lakh. 40%. Clear? Amount 40%. And 6 lakh into 100 upon base amount 10 lakh. Clear? 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 60%. 60%. Clear? Repeat again. Share capital 40% of percent. Clear? Reserve capital 20%.
टोटल बेस 10 लाख, 10 लाख का होल लाख कितने परसेंट हो रहा है? 40%। क्लियर? हम क्या करना चाह रहे हैं कि टोटल बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना पार्ट है? 40%। रिजर्व का कितना पार्ट है? 20%। नॉन करंट लायबिलिटीज 30%, करंट लायबिलिटीज 10%, टोटल 100%। टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स 40% एंड करंट एसेट्स 60%, टोटल 100%। क्लियर? एक ए कंपनी लिमिटेड क्लियर अमाउंट, एक बी कैलकुलेट बी कंपनी लिमिटेड अकॉर्डिंग टू ए कंपनी लिमिटेड। जैसे आपने ए का कैलकुलेट किया वैसे ही आप बी का कैलकुलेट करेंगे। बी का करेंगे कैलकुलेट, वर्किंग नंबर 1 5,40,000 इंटू 100 अपॉन टोटल अमाउंट 12 लाख अपॉन 12 लाख। नंबर 2 2,60,000 इंटू 100 अपॉन 12 लाख। क्लियर? नेक्स्ट 2,50,000 इंटू 100 अपॉन 12 लाख। बेस अमाउंट 12 लाख, सारी अमाउंट को 12 लाख से डिवाइड करेंगे। 1,50,000 इंटू 100 अपॉन 12 लाख। क्लियर? एसेट्स 7 लाख इंटू 100 अपॉन 12 लाख। 5 लाख इंटू 100 अपॉन 12 लाख। क्लियर? कैलकुलेशन क्लियर? वर्किंग नोट कैलकुलेट 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 यानी 540 डिवाइडेड बाय 12,000, 540 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 45%, 45%। क्लियर? एंड 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 260 divided by 12 तो 21.67। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 250 divided by 12 20.83 20.83। नेक्स्ट 1,50,000 इंटू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 150 डिवाइडेड बाय 12 12.5 टोटल 45% प्लस 21.67 प्लस 20.83 प्लस 12.5 टोटल 100%। क्लियर? टोटल 100%। राइट डाउन 45% and 21.67%, 20.83%, 12.5% एंड 100%। क्लियर? बी कंपनी क्या बता रही है? इसकी शेयर कैपिटल जो है 45% है, रिजर्व सरप्लस 21.67%, नॉन करंट लायबिलिटीज 20.83% एंड करंट लायबिलिटीज 12.5%। नेक्स्ट 7 लाख 1 2 1 2 3 4 5 700 अपॉन 12 700 अपॉन 12 58.33%। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नेक्स्ट 500 अपॉन 12 41.67 41.67 यानी 58.33 and 41.67 total 58.33 plus 41.67 total
100%। क्लियर। वर्किंग नोट रिपीट कर रहा हूँ। वर्किंग नोट अमाउंट इंटू 100 पाउंड बेस अमाउंट, टोटल अमाउंट इंटू 100 पाउंड बेस अमाउंट इंटू 100 पाउंड बेस अमाउंट, जो भी टोटल होगा उसको बेस बनाएंगे। अमाउंट इंटू 100 पाउंड बेस अकॉर्डिंग टू ए एंड बी कंपनी, सेम मेथड, कैलकुलेट ऑफ परसेंट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। जैसे बना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कंप्लीट बनता था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ऐसे कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended for the year ended 31st March 2016 and 17। ठीक है। जैसे हम लोग कंपैरेटिव बनाते हैं स्टेटमेंट क्लियर, वैसे ही हम लोग बनाएंगे। सब कुछ फॉर्मेट वगैरह चेंज होगा। कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉलम particular note number, amount 2016, amount 2017, percentage of 2016, percentage of 2017। क्लियर। अदर फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जितना ही फॉर्मेट है वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट की तरह ही नोट डाउन होगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन। फर्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2016 10 lakh and 17 14 lakh। क्लियर। सेकेंड, add other income, other income not given, total other income nil। third, total first plus second 10 lakh and 14 lakh, 10 lakh and 14 lakh। वैसे ही एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस ए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ materials consumed, cost of material consumed rupees 6,50,000 and 8,40,000। 6,50,000 40,000। second, finance cost, finance cost 80,000 and 1,40,000। finance cost 80,000, 1,40,000। other expenses
other expenses 60,000 and 70,000. Clear? Total expenses 1230 7,90,000. ठीक है, 1 2 3 5 10,50,000. ठीक है, 5th number, profit before tax. Third value in total income minus 4th value. Clear? 10 lakh minus 2 lakh 90,000, 7,90,000, 2 lakh 10,000. 10 lakh minus 10 lakh minus 7 lakh 90,000. 14 lakh minus 10 lakh 50,000, 3 lakh 50,000. Clear? 3,50,000. Tax 6 less tax nil. 7 profit after tax. 5th minus 6. 5th minus 6. Total 2 lakh 10,000. 2 lakh 10,000 and 3 lakh 50,000. 3 lakh 50,000. Clear? कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, इसमें बेस वैल्यू क्या मानते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना आपको. अदर इनकम गिवन भी होंगे फिर भी हम इसको बेस वैल्यू नहीं मानेंगे. इसको मानेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. बेस वैल्यू ओनली सेलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम नॉट इंक्लूडेड इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. बेस वैल्यू क्या होगा, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. क्लियर? अगर अदर इनकम गिवन भी होगा हम उस टोटल को बेस वैल्यू नहीं मानेंगे, सिर्फ मानेंगे 10 लाख को. वर्किंग नंबर 1 10 lakh into 100 upon 10 lakh base value 10 lakh into 100% nil into 100%. Clear? Next 6 lakh 50,000 into 100 upon 10 lakh. Clear? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 65%. Next amount 80,000 into 100 upon 10 lakh 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 8%. ठीक है. नेक्स्ट 60,000 into 100 upon 10 lakh 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6%. Clear? Total 65 8 73 6 79. Cross check 7,90,000 into 100 upon 10 lakh 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 79%. And profit 2,10,000 into 100 upon 10 lakh 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 29%.
1% and cross check 100% minus 79%. Total income 100%, total expense तो 79%. Clear? Total income 100% और total expense 79%. तो profit 21%. Tax are not given 21%. Clear? 2017 working note 2017 14 lakh into 100 upon 14 lakh. Base amount 14 lakh. Base amount 14 lakh 100% and 100%. Clear? Next 8 lakh 40,000 into 100 upon base amount 14 lakh. Base value 14, revenue from operation 14 lakh. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 14 7 जा 84 70%. 14 7 जा 6 जा 1484 6 जा 60%. Clear? 14 6 जा 84. Next 140 into 100 upon 14 lakh. 14 1 जा 14 10%. Clear? Next 70,000 into 100 upon 14 lakh. 14 5 जा 70. 14 5 जा 70 5%. 60 10 70 and 5 75%. Cross check 10 lakh 50,000 into 100 upon 14 lakh. Clear? And 75%. Next total income 100% and expenses 75%. Difference 25%. Calculate 3,50,000 into 100 upon 14 lakh. 1 2 1 2 3 1 2 3 14 to 525%. Clear? अदर इनकम गिवन होती उसका परसेंट अलग कैलकुलेट करके हम इसमें ऐड करते हैं. क्लियर? यानी परसेंट 100 प्लस जो परसेंट होगा 100 प्लस हो जाता है. कोई दिक्कत? रेवेन्यू क्लियर है? यानी इस वैल्यू को ही स्टेटमेंट ऑफ पीएल में हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में. बैलेंस शीट में जो बैलेंस शीट टोटल होगा उससे हम बेस ईयर मानेंगे. पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में किसको मानेंगे बेस वैल्यू? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को. क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट. क्या ये कैलकुलेट क्या कर रहा है? एक कंपनी रेवेन्यू कितने परसेंट हो रहा है? 100%. कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम कितना? 65% हो रहा है आपका. फाइनेंस ऑफ 8% एंड अदर एक्सपेंसेस 6%. टोटल एक्सपेंसेस 79% एंड प्रॉफिट 21%. 2017 100% रेवेन्यू. कॉस्ट ऑफ कंज्यूम 60%. फाइनेंस कॉस्ट 10%. अदर एक्सपेंस 5%. टोटल एक्सपेंस 75%. क्लियर? एक्सपेंसिव परसेंटेज डिक्रीज इन प्रीवियस ईयर. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25%. From the following statement profit and loss account, a common size statement of profit and loss Jayant Limited for the year 31st March 2018. इस क्वेश्चन में एक ही ईयर का गिवन है. हम कैलकुलेट करेंगे एक ईयर का तो कॉलम हमारे 2 कम हो जाएंगे. टॉप हेडिंग कॉमन साइज statement of PL account for the year ending 31st March 2018. Clear? 31st March 2018. Column
particular note number 2018 amount, percentage of 2018। यार एक ही है, कॉलम भी आपका दो ही बनेंगे। इनकम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, revenue from operation 25,38,000, 25,38,000। Second, add other income 38,000, 38,000। Third, total first plus second, total 25,76,000। Fourth, expenses number one, cost of material consumed, cost of materials consumed, cost of material consumed 14 lakh। Second, other expenses other expenses 5 lakh। Total 19 lakh, total 19 lakh total expenses। Clear? Fifth, profit before tax, third, minus 4। Six, less tax, and seventh, profit after tax, profit after tax, fifth minus 6। Clear? 5 minus 6, 5 minus 6, 25 lakh 76,000, 25 lakh 76,000 minus 19 lakh 6 lakh 76,000, 6 lakh 76,000, and tax 3 lakh 38,000, tax 3 lakh 38,000 minus 3 lakh 38,000, difference 3 lakh 38,000, 3 lakh 38,000। Calculate percentage, 25 lakh working 25 lakh 38,000 into 100 upon 25 lakh 38,000 is equal to 100%. Clear? Next, 38,000 into 100 upon 25 lakh 38,000, 38,000 into 100 upon 38 lakh upon 25 lakh 38,000, 1.38,000 into 100 upon 25 lakh
38,000 clear 1.50 1.50 total 101.50% 1.50 cost 14 lakh clear 14 lakh into 100 upon 25 lakh 38,000 25 lakh 38,000 55.16 55.16% clear 55.16%. next amount 5 lakh into 100 upon 25 lakh 38,000 19.70% clear total 19 lakh into 100 upon 25 lakh 38,000 74.86% clear total cross check total and profit before tax profit 6,76,000 into 100 upon 25 lakh 38,000 26.64% clear and after tax 3,38,000 into 100 upon 25 lakh 38,000 13.31 next 13.31 round of 32 clear 32 round of value any problem एक ही ईयर का गिवन था क्वेश्चन में तो हमने क्या किया एक ही ईयर को कैलकुलेट किया बेस ईयर से बेस ईयर हमारा रेवेन्यू ऑफिसर 25 to 38,000 अदर इनकम 38,000 ऑल अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100 जो भी अमाउंट गिवन है सभी को इनटू 100 अपॉन डिवाइडेड बाय बेस ईयर था 25 lakh 38 और 25 lakh 38,000 रेवेन्यू ऑपरेशन 100% अदर इनकम 1.50% राउंड ऑफ फिगर टोटल इनकम 101.50 क्रॉस चेक 101.50 माइनस 74.80 इक्वल टू 26.640 क्रॉस चेक 101.50 माइनस 74.86 इक्वल टू 26.64% प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्लियर क्वेश्चन कंप्लीट